Hi, we are back with another fun session and a very informative session with Mr. Umang here. Hi Umang, how you doing? Hi Shreya, I'm doing great. How about you? Same here. Gloomy weather outside today. I know, yeah. Yeah, it's putting a damper on things, but let's hope our uh, video and our information is going to be good. So we are going to talk about tax planning and investments today. And without further ado, I'll let you get started into the video. So, how do you invest money to grow and save taxes? So this is a very vast question, right? I'll try to answer in four different parts. Sure. So the first part I'll be talking about Canada tax structure. The second part I'll be talking about the investment income which we earn and the taxation on those investment income. The third I'll be talking about different investment accounts and how to use those accounts. And Mm-hmm. the fourth, the strategies of using the investment into different accounts, right? So let's start with Canada's taxation first. So Canada has a progressive taxation structure. So I think most of you must be knowing that if you earn more, you pay more in taxes, right? So if you have an income of 49,000 or below, you are in a basic tax structure of 25%. If you earn more than that, you pay more in taxes, right? So Yeah. now we come to a we come to a different investment income which we earn, right? So there are three investment income which we earn when we invest our money. One is interest income, which we earn from GICs, bonds, and Mm-hmm. etc. The second one is dividend, right? So when we invest, we get some dividends from mutual funds or stocks or something. And the third one is capital gains. So Yeah. how these three different investment incomes are taxed? The first is interest income. So interest income is the least efficient taxable income. The reason is, let's say if you invest into a GIC or a bond, the interest which you get on those GIC or bond, the entire interest sits on your income. So for example, if you're earning, let's say $1,000 in interest income, the Mm-hmm. $1,000 adds to your income and gets taxed at the highest marginal tax rate. Then the second comes dividend income. So we get a dividend tax credit on those dividend income. So it is more efficient than interest income, but the most tax efficient income is capital gains. So capital gains is nothing that but if you invest, let's say $5,000, that $5,000 grows to $6,000. So you earn $1,000, right? So as opposed to interest income, right? Only 50% of that 1,000, which is $500, will go and add to your income, right? So that is the reason capital gain is the most tax efficient income and interest is the least tax efficient income. Now we slightly talk about the different investment accounts which we have. So there are three main different investment accounts which we have. एक तो आपका RRSP हो गया, जो सबको Yeah. पता है RRSP क्या होता है, राइट? दूसरा हो गया TFSA और तीसरा हो गया नॉन रजिस्टर्ड. सो पहले हम RRSP के बारे में बात करते हैं. सो RRSP का मतलब ही ये है कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान. सो लोग बहुत एग्जैजरेट करते हैं कि RRSP में पैसा डालो, RRSP में पैसा डालो, बट आपको समझना है कि आपको वो पैसा कब डालना है, राइट? सो अगर आपकी इनकम है 49,000 और बिलो, राइट? सो आप 25% के टैक्स ब्रैकेट में हो. दैट इज द मिनिमम टैक्स ब्रैकेट. आप ये पूरी लाइफ टाइम आप ये मिनिमम टैक्स ब्रैकेट में रहोगे ही, 49,000 और बिलो में. सो अगर आप RRSP में तभी डालते हो, तो यू डोंट गेट द रियल एडवांटेज ऑफ दैट. द रीजन Mm-hmm. इज आप आगे जाके वो पैसा आपको विड्रॉ करना है, और आप जब भी आप विड्रॉ करोगे तो यू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस विच यू अर्न नाउ, राइट? सो वो रियल एडवांटेज नहीं मिलता RRSP का. दूसरा मैंने ये देखा है कि लोग पैसा तो डाल देते हैं RRSP में, बट आगे जाके उनको जरूरत पड़ जाती है. बट लेट्स से 2 or 3 years डाउन द लाइन उनको जरूरत पड़ती है पैसे की, तब उनकी इनकम बढ़ जाती है. तो उनकी इनकम अगर अभी 49 है तो उनकी इनकम अगर 3 साल के बाद 65,000 हो जाती है और उनको जरूरत पड़ जाती है कि पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, RRSP से पैसा निकाल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट अगर आप वो टाइम पे RRSP से पैसा निकाल रहे हो, तो जो आपने 25% के हिसाब से पैसा कमाया RRSP में पैसा डाल के, आप अभी वो हायर टैक्स ब्रैकेट में गए, राइट? तो आप पैसा ज्यादा दोगे टैक्स में. सो वो एक लॉस हो जाता है. तो लोगों को वो समझ नहीं है जितना मुझे मैंने देखा है, राइट? सो दूसरा है TFSA. TFSA बहुत ही मतलब हम जब भी क्लाइंट से फाइनेंशियल प्लान करते हैं,
हम हमेशा बात करते हैं कि टीएफएसए को मैक्सिमाइज करो, टीएफएसए में जितना पैसा डाल सकते हो कंट्रीब्यूशन लिमिट के हिसाब से उतना डालो, क्योंकि कनाडा में कैसा है कि वॉट एवर इनकम यू अर्न, राइट, इवन अ सिंगल इनकम यू अर्न, यू पे टैक्सेस ऑन दैट। एक सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसमें आप अभी भी टैक्स नहीं भरोगे और मरने के बाद भी टैक्स नहीं भरोगे। सो इफ यू आर इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट जैसे कि 25% है, तो मेक श्योर दैट यू मैक्सिमाइज योर टीएफएसए। फिर आगे जाके आपकी इनकम बढ़ेगी, आप हायर टैक्स ब्रैकेट में जाओगे, देन यूज योर आरआरएसपी, तब तक आपका आरआरएसपी डिडक्शन लिमिट भी बढ़ जाता है। द थर्ड वन इज नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट। अभी जो पैसा आरआरएसपी और टीएफएसए में नहीं जाएगा, वो जाएगा नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में। इंडिया में हम ब्रोकरेज अकाउंट बोलते हैं, राइट। सो वो कैसा होता है, इट्स लाइक अ नॉर्मल आरआरएसपी एंड टीएफएसए, बट उसमें कैसा होता है कि आप पैसे डालते हो और आप वो अगर वो साल में अगर आपने कुछ पैसे कमाए तो आपको वो साल के इनकम में दिखाना पड़ता है, एंड यू पे टैक्सेस ऑन दैट। तो ये तीन डिफरेंट अकाउंट्स है। तो जैसे मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट इज द लीस्ट टैक्स एफिशिएंट इनकम, डिविडेंड उससे उससे ज्यादा बेहतर है, और कैपिटल गेन सबसे ज्यादा बेहतर है। सो अगर आपको चाहिए कि मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, जीआईसी में इन्वेस्ट करना है, तो आप टीएफएसए या आरआरएसपी का यूज करिए। मेक श्योर दैट यू, क्योंकि वो टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट है, राइट, यू डोंट पे टैक्सेस ऑन दैट। और अगर आप कैपिटल गेन जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो नॉन रजिस्टर्ड में करिए, ताकि ओनली 50% ऑफ दोज गेन्स आर टैक्सेबल। आप म्यूट हो श्रेया। Yeah, so you're basically saying कि efficient tax planning is directly linked to your investments and investment strategy. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Yeah. So मुझे कैसे पता चलेगा कि अपने टैक्सेस कैसे कम करूं? Like if I'm withholding too much or too little, how do I make that out? So मैं actually I'm a financial planner, right? This question is more for an accountant, but I'll try to shed some light on it. तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में करते हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक क्लाइंट से मैं मिला था, अभी उन्होंने जीआईसी में इन्वेस्ट करे थे कुछ $2 लाख, और वो $2 लाख उन्होंने नॉन रजिस्टर्ड में करे थे, वो जो टैक्सेबल अकाउंट है, राइट। सो 2 लाख पे अगर उनको साल का 5 से 10 हजार मिल रहा है इंटरेस्ट इनकम, राइट, तो 5 से 10 हजार पूरा का पूरा उनके इनकम में ऐड हो रहा है, एंड इट इज टैक्स एट द हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट। सो वो इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग नहीं होती है इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो अगर आप पूछो कि अभी टैक्स प्लानिंग कैसे करें इन्वेस्टमेंट में, तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको अगर जीआईसी में इन्वेस्ट करना है तो आप टीएफएसए में करें या आरआरएसपी में करें, जो नॉन रजिस्टर्ड है उसमें ना करें। और भी स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगा। आ, जैसे कि अगर हस्बैंड और वाइफ है, अगर हस्बैंड ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और वाइफ कम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, तो हस्बैंड टैक्स बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हस्बैंड दे कैन ओपन अप अ स्पाउसल आरआरएसपी। सेम आरआरएसपी ही होता है, बट वो स्पाउस के नाम पे होता है। सो क्या हस्बैंड हस्बैंड क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और वो डिडक्शन लेते हैं अपने इनकम पे। बट अगर जब वाइफ विड्रॉ करेगी तो वाइफ के टैक्सेबल इनकम होगा। बट सिंस वाइफ का इनकम लो है या नहीं है, उस पे जीरो टैक्स होगा, राइट। बट उसका भी एक कैच है, मतलब गवर्नमेंट स्मार्ट है। तो गवर्नमेंट ये बताती है कि अगर आप पैसा डालते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो 3 साल तक पैसा ना निकाल पाए। अगर वो 3 साल के पहले पैसा निकालेंगे तो सीधा का सीधा टैक्स होगा हस्बैंड के इनकम पे। सो एक स्ट्रैटेजी ये है, अगर आपको लगता है कि 3 साल के बाद शायद मैं मटर्निटी पे जाऊंगी या मैं नहीं कमाऊंगी, तो ये एक स्ट्रैटेजी आप ये यूज कर सकते हो। और जैसे कि नए फॉर न्यू कमर्स, आई थिंक द आंसर वुड बी ज्यादा अकाउंटेंट दे पाएंगे, बट देर आर फ्यू डिडक्शंस दे कैन यूज, सच एज अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव हो रहे, तो मूविंग एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। सो आप वो अपने इनकम में डिडक्शन ले सकते हो। दूसरा है, अगर आपका आपका बच्चा है, राइट, और कोई प्री स्कूल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि चाइल्ड केयर, चाइल्ड होम, राइट, वो भी आप डिडक्शन में ले सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई न्यू कमर आता है, आई थिंक दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन एजुकेशन एंड अपग्रेडिंग द स्किल्स, राइट। सो यहाँ की गवर्नमेंट भी ये बताती है कि ये सब एजुकेशन आप टैक्स क्रेडिट में डाल सकते हो। तो आपके एंड ऑफ द ईयर जो भी टैक्स लाइबिलिटी होती है, राइट, you can reduce your tax liability with the help of those tuition expenses which you have made. Okay, so that sounds like some very, very important and good Yeah. points to take in mind, जो कि काफी लोगों को नहीं पता होता. नहीं पता। So
व्हाट वुड यू से कि ये चार चीजें या पांच चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें टू कीप इन माइंड एज अ बिगिनर, सो दैट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी ना रहे मेरे को, बट एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई शुड कीप इन माइंड? हाँ जी, आपको ये सब आपको आप ब्रीफ आइडिया रखनी चाहिए आपको कि क्या-क्या डिडक्शन मिलते हैं और क्या-क्या क्रेडिट्स मिलते हैं, राइट? क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अकाउंटेंट आपको सब बताएगा। तो आपको अकाउंटेंट के पास जाना है और आपको बताना है कि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस है, राइट? जैसे कि मैंने फार्मेसी बिल्स भरे हैं या फिर मैं मेडिक्लेम लेके रखे, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे, सो उसमें कुछ मुझे टैक्सेबल बेनिफिट मिल सकता है। So they will answer that, but you just have to make sure कि जितनी भी deductions और credits है आप दिमाग में रखो at the end of the year when you file your taxes. श्योर, श्योर, यस। तो आई हैव एन इनकम। अब हाउ डू आई नो, ठीक है अपने एक्सपेंसेस एक हो गए लेकिन उसके बाद भी यू हैव अ साइजेबल पोर्शन लेफ्ट, सो व्हाट वुड यू से इज द परसेंटेज कि मैं अपनी सेविंग्स का कितना परसेंट इज आइडियल टू इन्वेस्ट, एंड यू नो कि टैक्स Yeah. सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस तरह अलग दूसरी तरफ से भी, हाउ मच वुड यू से? So there is no general rule of thumb, पर जब भी मैं भी बात करता हूँ जब भी तो ये क्वेश्चन काफी आते हैं, तो मैं हमेशा एक ही चीज रेकमेंड करता हूँ कि 50 30 और 20 का रेशियो रखो, राइट? अगर हाउस होल्ड इनकम आपकी है हस्बैंड वाइफ की, तो 50% गोज इनटू योर फिक्स एक्सपेंसेस, राइट? सच एज मॉर्गेज हो गया, यूटिलिटीज हो गया और सब एक्सपेंसेस हो गया। फिर 30% है वो सेविंग्स में डालो। आई नो कि लोग बोलते हैं कि पहले हम खर्चा करेंगे, राइट? वी हैव आवर ओन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, सो विल फोकस ऑन दैट और फिर बाद में जो बचेगा विल इन्वेस्ट। बट मेरा ये आइडियोलॉजी नहीं है। आई मेक श्योर दैट वंस माय फिक्स एक्सपेंसेस आर ओवर, द सेकंड हायरार्की शुड बी माय इन्वेस्टमेंट्स, माय सेविंग्स। और बाद में जो 20% बचता है जो भी है, देन यू कैन स्पेंड ऑन योर ओन एक्सपेंसेस, जो डिस्क्रिशनरी आपको करना है वो। यू आर म्यूट, श्रेया। ग्रेट, ग्रेट। सो what are the few options that you would say investment options are the best that we have here in Canada? कनाडा बहुत ही बड़ी कंट्री है, राइट? हम जब इंडिया में होते हैं तभी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स के बहुत ज़्यादा मार्केट्स है। सो व्हेन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी वी जस्ट वांट टू गेट गो इनटू इट। सो यहाँ पे वी हैव जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, राइट? इक्विटीज होती है, बॉन्ड्स होते हैं। सो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हुए। अभी इक्विटीज में अगर कोई सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, सो इक्विटीज उनके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर प्योर इक्विटी फॉर्म में ले तो। सो इसीलिए मार्केट में और प्रोडक्ट्स है जो इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए। सो फॉर अ न्यू इमिग्रेंट और फॉर अ पर्सन हु डजंट हैव दैट इन्वेस्टमेंट नॉलेज, आई थिंक म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे कुड रिलाई ऑन। और बाद में जैसे कि अभी अभी मार्केट में आपने सुना होगा क्रिप्टो भी आ गया है, राइट? क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ हर्ड गोइंग ऑन। अगर आपको कोई कल आके बोलता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको पता चले कि मेरा मेरा रिस्क टॉलरेंस और मेरा नॉलेज उतना है कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। बट फॉर अ बिगिनर आई शुड से दैट स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। थोड़ी आइडिया लो मार्केट मार्केट कैसे काम करता है, एंड देन स्टार्ट गोइंग इंडिपेंडेंटली। Great, great. And after listening to this session and maybe consulting with other financial planners and advisors, do you think ki a beginner or somebody like an ordinary man can do it themselves? Yeah, they should hire a financial planner. सो फाइनेंशियल प्लानर इज अ वेरी सो लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट, आप अपनी फाइनेंसेस को देखोगे तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ 20 या 30% पोर्शन में आती है। देर आर अदर थिंग्स एज वेल, राइट? जैसे कि एक कैश फ्लो प्लानिंग होगी, जैसे कि आपकी डेली कैश फ्लो आती है, मंथली कैश फ्लो आती है। तो हाउ डू यू प्लान दैट? जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो आपके साथ बैठ के आपको समझाता है, बेसिकली आपको बजट में रखा है कि आप इतना स्पेंड करो, इतना ये करो और इतना सेव करो, राइट? सो कैश फ्लो एक प्लानिंग हो गया। दूसरा हो गया टैक्स प्लानिंग, जैसे कि मैंने बात करी आपसे टैक्स प्लानिंग की, कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ कौन से अकाउंट पे होना चाहिए, राइट? दैट इज टैक्स प्लानिंग। थर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फोर्थ हो गया एस्टेट प्लानिंग। जो एस्टेट प्लानिंग जो होता है, इट्स बोलते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि वी डोंट थिंक अबाउट कि व्हेन वी हमको कुछ हो जाता है तो हमारे पैसे कैसे जाएंगे, वी डोंट थिंक अबाउट दैट, बट यहाँ पे यू हैव टू थिंक। क्योंकि क्योंकि लाइफ, सो देयर आर टू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, राइट? डेथ एंड टैक्सेस, सो यू हैव टू अकाउंट इट फॉर। सो कल आपको कुछ हो जाता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स है, तो यू वोंट रियलाइज कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से 50% गोज टू गवर्नमेंट।
आपके यहाँ पे बोलते हैं डिस्पोजिशन टैक्स बोलते हैं आपके मरने के बाद। सो यहाँ पे लोग प्लान नहीं करते यूजुअली। तो 50%, जैसे कि आपका 100,000 आपके एसेट्स है, 50,000 तो आपके गवर्नमेंट लेके जाएंगे और 50,000 ही आपके आपके बेनिफिशियरीज के लिए बचेंगे। सो हाउ डू यू प्लान दैट, राइट? तो वो एक एस्टेट प्लानिंग हो गया। और लास्ट है आपका रिस्क प्रोटेक्शन। अभी आप अक्यूमुलेशन स्टेज में हो, राइट? यू हैव अ फैमिली, आप ग्रो कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, बट कल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। इफ समथिंग हैपेंस टू यू, कुछ गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है आपको, तो आपकी फैमिली का क्या होगा, राइट? सो दैट्स द रीजन वी टेक इंश्योरेंस एज वेल इनटू our complete financial plan. So it's just not investment planning which we talk about. We talk about all the five dimensions of a robust financial plan. Okay, and do you have any word of advice जो newcomers आ रहे हैं कैलगरी में and Canada में and they are thinking of investing? So the most important thing which I believe जो मैंने भी अपने हाथ जलाया है is to have discipline और इमोशंस पे कंट्रोल करना। जैसे कि मैं कल ही आया था, लेट्स से मैं 2020 में आया, लोगों ने बोला क्रिप्टो में डालो, राइट? सो आप यूजुअली यू गेट कैरिड अवे एंड यू गो विद द हर्ड। और फिर कल अगर थोड़ा सा गिर जाता है ना, तो फिर दैट योर इमोशंस किकिंग, कि अभी यार गिर गए हैं तो थोड़े से प्रेशर आ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट पुलिंग आउट योर मनी, और फिर कल वापस बढ़ जाता है, राइट? सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। सो इमोशंस को कंट्रोल करना वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो मेक श्योर यू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। uh, there's a saying that you don't want to put all your eggs in one basket, right? So when I say diversify, you have to make sure कि आप अगर इक्विटी ले रहे हो तो मेक श्योर कि थोड़ा सा इक्विटी लो, थोड़ा सा बॉन्ड लो, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट लो। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में करो, ताकि एक प्रोडक्ट जाता है, एक प्रोडक्ट गिरता है, तो एक प्रोडक्ट बढ़ता है, तो आपका बैलेंस आउट हो जाता है, राइट? सो डाइवर्सिफिकेशन is a key thing when you consider investments. और लास्ट थिंग है यूज ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स। जब मैं आया था मुझे नहीं पता था टीएफएस आरआरएसपी ये सब होते हैं और कब यूज करना है, राइट? सो लोग ब्लाइंडली कहीं भी पैसा डाल देते थे। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट अकाउंट्स, यू अंडरस्टैंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, और वही जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छे अकाउंट्स में डालो, जो टैक्स एफिशिएंट और सूटेबल अकाउंट्स हो। I think that is great advice, especially in जब newcomers आते हैं, they are, quite clueless about the या systems here in Canada. तो या अगर कोई friend होता है या relative होता है, कई बारी लोग उनकी बात, जैसे you said, heard and उसमें चले जाते या हैं and they're not even financially settled here, एग्जैक्टली। and that leads to losses and yeah, I think that is great advice. And would you say कि कोई फर्क आया है post pandemic and pre pandemic in the on this topic, मतलब planning and taxes and all of that? बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, क्योंकि क्या हुआ था 2020 में, जब भी markets crashed, right? So a lot of investor got panic, क्योंकि उनके retirement plans होते हैं इस पे investments में, right? So काफी लोग panic हो गए कि अभी I'm going to retirement, I'm going to retire in 2 years, अभी मेरा plan कैसा है and all, right? But we always make sure that we sit with the clients. एक चीज हम समझने की जरूरत है कि इक्विटीज जो है, राइट, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर फाइनेंसेस, राइट? और आई वुड लाइक टू गिव यू टू एग्जांपल्स। जैसे कि यू वोंट बिलीव कि यहाँ पे 1940 से मैंने मतलब हमने रिसर्च करी है, 1940 से अब तक इक्विटीज हैव नेवर डिसअपॉइंटेड। ऊपर नीचे वोलेटिलिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इक्विटीज, बट अगर आप 10 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे, राइट, फ्रॉम 1940s until now, equities have given 10 to 11% annualized for 10 years. So 1940 से 2021, हर 5 या 6 साल के बाद एक स्कैम आता है या एक स्कैंडल आता है, कुछ भी होता है, राइट? बट रिकवरी जो है इक्विटीज, वो ड्रामेटिक है। सो जैसे कि मैंने बताया, 1940 से अब तक इक्विटीज ने 10 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, 10 इयर्स के लिए। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, जैसे मैंने बताया, इमोशंस पे कंट्रोल रखना, राइट? इफ यू आर हियर फॉर अ लॉन्ग टर्म, आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, यू शुड हैव अ गोल इन माइंड, कि अगर मैं ये पैसे डाल रहा हूँ तो ये पैसे मेरे किसके लिए हैं, व्हाट इज माय एंड गोल? इट कुड बी रिटायरमेंट, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी एनीथिंग। इफ यू डोंट हैव अ गोल, and that where you get reckless and you start withdrawing, and तो पूरा फाइनेंशियल प्लान डिजास्टर हो जाता है। तो इतना फर्क नहीं आया। इफ यू आस्क मी, इक्विटीज आर ऑन अ हायर रन, और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो प्री कोविड है वही पोस्ट कोविड है। अगर प्री कोविड की मैं बात करूं तो कोविड में मार्केट्स फेल टू 20% टू 20 to 30%, राइट, मार्च में। बट अभी देखोगे तो मार्च से अब तक द मार्केट हैज रिकवर्ड बाय 55%।
तो आप जरा सोचो कि अगर आपने वो डाउन जब भी 20 to 30% गिरा था तभी आपने अगर पैसे इन्वेस्ट करे होते तो योर प्लान वुड हैव बीन वेरी रोबस्ट नाउ, राइट? So that's what I'm saying. Don't panic. The only thing which derails your financial plan is when you panic. Amazing, amazing advice. And any other words on the topic? I know it's a vast topic. We can probably spend I hours talking on it, There's a lot but of things to talk about, yeah. But if I keep the new migrants in mind, right? Uh, like I said, right, have a control on your emotions and have a plan in place. Discipline रखो. और अगर आप ये बोल रहे हो कि I want to plan for my retirement or I want to plan for my child education, आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि जब मेरा बच्चा 18 इयर्स का होगा, 18 साल का होगा, तो मेरे पास उतने पैसे होंगे कि नहीं, राइट? So have a plan in place. When I say a plan, you should know how much you should need, how much you need to invest, right? Or how much you need for your children education. So don't just invest recklessly. Have a plan in place. That's what I would like to recommend the new immigrants out here. yeah, so don't grow your money just for the sake of it. Exactly. Great, great. And so any last topic, any parts of the topic that you think we haven't covered and you want to say So something? like I said, right, financial plan is a very vast topic. Yeah, When we sit with our clients, we actually have a lot of discovery meetings in the initial stage, right? To get to know them. What are your financial goals? What are your risk tolerance, right? So based on that, we invest and we make sure that that plan keeps. So financial planning is not just a one-time thing. It's an ongoing process, right? You have to keep looking at your financial plan every year or maybe every quarter, और ये दिमाग में रखना है कि आपने एक बार पैसे डाल दिए तो भूल नहीं जाने कि चलो अभी लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग दैट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी हैं यहाँ पे, राइट? जैसे कि प्री कोविड, अगर आप मैं एग्जांपल दूं, तो जब भी कोविड हुआ तो द मेजर सेक्टर्स बोलते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए वाज एयरलाइन और रेस्टोरेंट, वो सब जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए। बट एट द सेम टाइम वो सेक्टर कोविड के बाद सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो अगर आप मुझे बोल रहे हो कि अगर कोई थीम बताओ, राइट, इन्वेस्टमेंट नॉलेज के हिसाब से, सो ये यही थीम है। आपको ये सोचना है कि जब कोविड होता है तो पीपल स्टॉप स्पेंडिंग मनी। जब पीपल स्टॉप स्पेंडिंग मनी मतलब उन्होंने ट्रैवल बंद कर दिया, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बंद कर दी, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर आफ्टर कोविड जैसे कि अभी जो चल रहा है मार्केट, the sector which are going, which they are discretionary sectors, right? So काफी काफी कॉमन सेंस है, राइट? ये इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल इतना है नहीं। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। आपको पता है कि कोविड के पहले ये सेक्टर गिरे थे, अभी लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो कहाँ पैसा डालेंगे लोग, और वो सेक्टर को आपको टारगेट करना है। या that is great, great. So it was great talking to you. I think सेम I learned a lot too. सेम हियर And श्योर। yeah, and yeah, we थैंक यू can सो we I मच। hope we can definitely deep dive as required into फॉर श्योर। any subtopic. And great. So have a great day, Umang. You too have a great day, Shreya, and thank you so much for having me here. Absolutely. Thank you. Take care, take care. I'll see you Bye soon. bye. Bye bye.